अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का सौतेलाना सलूक। वज़ीर आला KCR की अपील के बावजूद सैलाब से मुतासर रियासत को माली इमदाद जारी नहीं की गई। रियासती वज़ीर KTR ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। 10 नवंबर से सालार जंग म्यूजियम दोबारा खोल दिया जाएगा। फेस मास्क और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी। नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 50 गाड़ियां की गई जब्त। हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो सैलाब और बारिश से मुतासरा रियासत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KTR ने मरकज़ पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि माली इमदाद के सिलसिले में मरकज़ी BJP हुकूमत गैर BJP इक़्तिदार वाली रियासतों के साथ सौतेलाना सलूक रवा रखे हुए है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से इमदाद की अपील के बावजूद मरकज़ और वज़ीर आज़म मोदी ने सुनी अनसुनी कर दी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में बारिश से मुतासर रियासत कर्नाटक को 664 करोड़, साल 2017 में गुजरात को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि तेलंगाना में सैलाब आने के बावजूद ताहाल इमदाद जारी नहीं की गई। కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేదల కష్టాలు తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి, ఒక మనసున్న వ్యక్తి, మనసున్న ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఒకవైపు ఇంకా వర్షం బంద్ కూడా కాలేదు, ఇంకా వర్షం పడతానే ఉంది. వర్షం పడుతున్నప్పుడే వరద సహాయం ప్రకటించి తక్షణ సహాయం కింద 550 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించి ఒక 50 కోట్లేమో ఏమన్నా రిపేర్స్, రోడ్ కావచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావచ్చు, పైప్ లైన్లు కావచ్చు, నాలాలు కావచ్చు, ఏమన్నా తక్షణ రిపేర్లు ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కోసం ఒక 50 కోట్లు వాడుకోండి. లక్షల మంది ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగింది కాబట్టి ఒక 4-5 లక్షల మంది ప్రజలకు, ఆ కుటుంబాలకు 4-5 లక్షల కుటుంబాలకు 10,000 రూపాయల చొప్పున సాయం చేద్దామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణ సాయం కింద 10,000 రూపాయల చొప్పున ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మీకు లెక్క తెలవాలా అంటే ఈ సాయం కూడా ఎట్లా చేసినామంటే, ఇప్పటి వరకు 4,30,000 కుటుంబాలకు మనం ఈ సాయం అందించడం జరిగింది. 4,30,000 కుటుంబాలకు. అందులో హైదరాబాద్లో దాదాపు 3,80,000 కుటుంబాలు, కంటోన్మెంట్లో ఒక 10-12,000 కుటుంబాలు, అదేవిధంగా బయట హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉండే వివిధ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలో మరొక 40,000 కుటుంబాలకు, మొత్తం కలిపి 4,30,000 పైచిలకు కుటుంబాలకి ఈరోజు ఆదివారం. కానీ ఈరోజు కూడా మా అధికారులు ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, ఈరోజు కూడా మా ఎమ్మెల్యేలు ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, మా మంత్రులు ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈరోజు కూడా సాయం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో వర్షం ఇంకా తగ్గకముందే ప్రకటించడమే కాకుండా ఇంత పకడ్బందీగా చేసినాం. ఇది మా దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్. ఎవరికి సాయం ఇచ్చినాం, వారి పేరేంది, వారి ఫోటో ఏంది, వారి ఇంటి నెంబర్ ఏంది, వారి ఫోన్ నెంబర్ ఏంది, ఇదంతా కూడా మా దగ్గర ఇది ఒక్కొక్క జోను, ఒక సర్కిల్ యొక్క రిపోర్ట్. ఇది ఇట్లాంటిది 4,30,000 మంది డేటా మా దగ్గర ఉంది. మేమేదో ఆషామాషిగా చిల్లర మల్లరగా మేము చేయలేదు. ఎవరు నష్టపోయినరు, ఎవరు వాళ్ళ పేరేంది, వాళ్ళ ఫోటో ఏంది, వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ, ఇంటి నెంబర్ ఎక్కడ, పకడ్బందీగా ఇది మీకు ఇచ్చిన మీకు కూడా సమర్పిస్తాను, చూసుకోండి. ఈ రకంగా అందజేయడం జరిగింది. ఇందులో మేము ఎలాంటి భేదాలు కానీ భేషజాలకు కానీ పోలేదు. ఎవరు నష్టపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చినాం. ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆధార్ నేను చెప్పిన, హౌస్ నెంబర్ చెప్పిన, వాళ్ళ పేరు, ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినాం. ఇవన్నీ చేసి బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు అండగా మేముంటే, ముఖ్యంగా ఈ వర్షాల సమయంలోనే దసరా పండుగ వచ్చింది. మనం మొన్న అక్టోబర్ 25 నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు బాధపడ్డారు. దసరా తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండుగ. ఎంతటి పేదవాళ్ళైనా కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటారు. ఎంత కష్టంలో ఉన్నా పండుగ, కనీసం పండుగ పూట 4 అన్నం మెతుకులన్నా కడుపులో పడాలి, పిల్లలకు కుటుంబంతో సహా మంచిగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆ ఉద్దేశంతోనే దసరా లోపే తక్షణ సహాయం అందించాలి అనే ఒక పట్టుదలతో ముఖ్యమంత్రి గారు 920 టీములు ఏర్పాటు చేసి, 1 కాదు 2 కాదు, 920 అధికారిక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి ఒకటే రోజు 1,00,000 మందికి పైగా సహాయం అందిస్తే, కేవలం పేదవారికి వెంటనే సహాయం అందాలి, వారికి వెంటనే లాభం జరగాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తుంటే కొంతమంది రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఒకటి,
ఒక దశలో ఇంకా కొంతమంది అర్హులు మిగిలిపోయినారు అని చెప్పి మాకు సమాచారం వస్తే మనకు ఇప్పటి వరకు कोविड वबा के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी के बाद हैदराबाद में वाक़ सालार जंग म्यूज़ियम को आवाम के लिए बंद कर दिया गया था। ताहम हुकूमत की नई हिदायत के बाद 10 नवंबर से सालार जंग म्यूज़ियम को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। म्यूज़ियम की प्रेस नोट के मुताबिक म्यूज़ियम आने वालों को फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा, जबकि 6 फीट समाजी फासला बरकरार रखने की भी हिदायत दी गई है। इसी तर्ज पर मउम्मर अफराद, हामिला ख़वातीन और बच्चों से ख्वाहिश की गई है कि वो वबा के इस दौर में म्यूज़ियम आने से गुरेज करें। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ पहाड़ी शरीफ के अहाते में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की बिहार असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के लिए ख़त्म कुरान मजीद और आयत करीमा का दस्तर का नज़म किया गया। इस महफिल में मजलिस के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने भी शिरकत की और खुसूसी दुआ की। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस तवक्को का इजहार किया कि मजलिस के उम्मीदवार बिहार असम्बली में बेहतरीन मुज़ाहरा करेंगे। आज पहाड़ी शरीफ में हिज़्बुल अफ्ताब सुल्तान वल आरिफीन शहंशाह दक्कन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खत्म कुरान और आयत करीमा का ख़त्म मुनक़्क़िद किया गया था। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख साज कामयाबी के लिए रकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की सरपरस्ती में अभी मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मक़बूजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहनुमाई में ये ख़त्म का अहतमाम किया गया था और मौलाना फरीदुद्दीन सोहरवर्दी साहब यहाँ के मुतवल्ली और लिखत अंगेज़ दुआ किए मजलिस की कामयाबी के लिए और नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत के और कुरानुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत व सलामती दराज़ी उम्र के लिए और भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ की गई। खत्म कुरान आयत करीमा का ख़त्म उससे पहले मुनक़्क़िद हुआ, ख़त्म पढ़ा गया। उसके बाद सरकार बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस पर गिलाफ चढ़ाया गया, चादर गुल पेश की गई। उसके बाद सलाम हुआ, फातिहा ख़वानी हुई। मुझे तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए आप बाद नमाज हर नमाज में दुआ कीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला शानदार कामयाबी अता करे। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। कौमी यौम तालीम की मुनासिबत से 11 नवंबर बरोज़ चारशंबे को 11 बजे दिन मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में यौम आज़ाद तक़रीब और छठा अहमद अली मेमोरियल लेक्चर का अहतमाम अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है। प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ सदर शोबे उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक़रीब की सदारत करेंगे, जबकि प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन बाउनवान असरी हिंदुस्तान पर मौलाना आज़ाद के तालीमी और फ़िक्री नज़रियात का इतलाक़ अहमद अली मेमोरियल कल्चर देंगी। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस मारूफ समाजी जहदकार जसविन जयरुत मेहमानान खुसूसी की हैसियत से खिताब करेंगे। कल्चर सेक्रेटरी डॉक्टर जहांगीर एहसास और मोतमद तशहीर मोहसिन खान ने शिरकत की अपील की है।
अमीरपेट में एक खातून के साथ हिरासानी करने वाले शख्स को पुलिस ने बस स्टॉप से हिरासत में लिया, तहाँ वो पुलिस की जानिब से पकड़े जाने पर तामुल का इजहार करते हुए देखा गया। पुलिस ने फौरी तौर पर महेश नामी शख्स को हिरासत में लिया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। हाँ भाई, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मार्गदर्शक को तहनीत पेश करने की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। वाज़ेह है कि रच्चाकुंडा पुलिस और रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से 159 मार्गदर्शक को तैयार किया गया है जो पुलिस और मुतासरीन के दरमियान पुल का काम करेंगे। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। ఫస్ట్ हमारा ప్రోగ్రామ్ అంటూ ఒకటి ఉంటుందని మా కాలేజీలో చెప్పడము, మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అవ్వడం వల్ల చాలా వరకు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు వస్తారు. మొత్తం ఫ్యామిలీస్కి కూడా ఎలాంటి After training, there will be some parade to conclude that. What we have learned and what we have contributed to the society. So we have to deliver what we learned from India Academy or whatever the training session is there. Now you are empowered with a lot of knowledge that has to go into the needy people requests, needy people requirements. When you think in that line, I recollect Andreas quote on this. It is what we said, like it is not who will let me, or it is who will stop me. Like it's not about who will let you to do this. It is not about who will allow you to do this. It's not about who will make you to do this. It is about who will stop you. Types. And you should go with that kind of spirit that no one can stop you, and now you have to go ahead with the commitment you have. That's why you have been told about what are the when you have to act well, you have to know what are the rules to do your job well. When you have to play cricket, you know what are the games of the rules of the game. Anything, whenever you are doing that, you must know what you have to do that, how you have to do that. Now that's the basic thing which has given to you. Keep on getting whatever. संतोष नगर चौराहे पर अलल सुबह आरटीसी बस ने तेज़ रफ्तारी के दौरान एक जारबकश खातून को टक्कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुई। साथ ही जारबकश अफराद ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर शदीद एहतजाज किया और आरटीसी ड्राइवर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुतालिका पुलिस ने फौरी मुकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ख्मी खातून को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। రెండు నిమిషాలు ఆగు. 2 నిమిషాలు ఉంటాం.
कुछ जगह ना एक मिनट राटो ఏం బాలే అమ్మ అమ్మ ఏం బాలే ఆగు కొంచెం సేపు ఆగు ఆఫీసర్స్ కి చెప్పి పెట్టారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో సుమారుగా 22,000 మంది ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి హైదరాబాద్ నగరవాసులు చూస్తున్నారు. కోవిడ్-19 స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ వ్యాధిని ఎదుర్కోవడంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పారిశుద్ధ్యక సిబ్బంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిబ్బంది, జవాన్లు, డాక్టర్లు, బిల్ కలెక్టర్లు, ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు, శానిటరీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, శానిటరీ సూపర్వైజర్సు ప్రతి ఒక్కరు రోడ్ల మీద ఉన్నారు. అధికారులు చాలా వరకు తప్పించుకున్నారు. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే యాక్సిడెంట్లు అయితే చనిపోయేది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, మహిళలు మాత్రమే. 100% ఇప్పటివరకు కొన్ని వందల మంది యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు. కారణం నిర్లక్ష్య వైఖరి. ప్రభుత్వం ఇటువంటి వాటి మీద శ్రద్ధ ఎందుకు చూపించదు? కోవిడ్-19లో కోవిడ్ వచ్చింది, 14 రోజులు ఇంట్లో పడుకోవాలి, 14 రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే రెస్ట్ ఇవ్వకుండా, జీతం ఇవ్వకుండా ఇంట్లో పండుకున్నాను మా వర్కర్లు. మా వర్కర్ల వల్ల ఈరోజు ప్రపంచ ఖ్యాతి వచ్చినటువంటి హైదరాబాద్ నగరానికి మరి మీరు ఇస్తున్నటువంటి కాంపెన్సేషన్ ఎంత? రూపాయ 2 రూపాయల? మా ప్రాణం విలువ ఎంత? మా ప్రాణం విలువను మీరు అసలు విలువిస్తలేరు. ప్రభుత్వం వెంటనే దీని మీద ఆలోచించాలి. ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చెప్తున్నాయి సంక్షేమం చేస్తామని చెప్పి, మీరిచ్చే రూపాయి ఎంత? మా విలువ ఎంత? చనిపోయినటువంటి వ్యక్తికి, చనిపోయినటువంటి ఆడామె ఈరోజు పొద్దున 7:30కి జరిగింది, సుమారు 7:30కి అని అంటున్నారు. ఆ సమయానికి ప్రొద్దున ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, కానీ యాక్సిడెంట్ జరగడం దురదృష్టకరం. ఆర్టీసీ అధికారులు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా అంటున్నారు డ్రైవర్లకి. మరి ఆ ట్రైనింగ్ ఇదేనా? ఆ జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ స్పాటు ఫుట్పాత్ 5 ఫీట్ల డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఫుట్పాత్ పక్కకు జరిగింది, అది మెయిన్ రోడ్ మీద కూడా జరగలేదు. మరి ఆ నడుపుతున్నటువంటి వాహనం నడుపుతున్నటువంటి డ్రైవరు సామర్థ్యుడేనా? మరి ఆర్టీసీ అధికారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? మాకు కాంపెన్సేషన్ ముఖ్యం కాదు, మా వర్కర్ల ప్రాణాలు ముఖ్యం. మా వర్కర్లకు గౌరవం దక్కాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు వరకు, ఇప్పటి వరకు गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हबीबनगर पुलिस ने मोटर बाइक्स और मोटर कारों की चेकिंग की और तकरीबन 50 गाड़ियों को खिलाफ वर्जी की पादाश में जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में सूरत और सौराष्ट्र के माबैन रुपेक्स फेरी खिदमात का इफ्तिताह किया। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि सूरत और सौराष्ट्र के दरमियान सड़क के रास्ते का फासला तकरीबन 450 किलोमीटर है। इस फेरी सर्विस के जरिए ये रास्ता सिर्फ 90 किलोमीटर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद सूरत में आबाद हो गई है और हीरा की सनत में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सौराष्ट्र और सूरत के दरमियान हज़ारों कारें और ट्रक के साथ बसें भी चलती हैं और सालाना लाखों मुसाफिरीन इस सड़क के रास्ते से सौराष्ट्र से सूरत पहुंचते हैं, जिसके लिए 12 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन फेरी सर्विस के ज़रिए लोगों के सफ़र के वक्त और पैसे की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि रुपेक्स फेरी के इफ्तिताह के साथ ही सौराष्ट्र पहुंचने में वक्त सिर्फ 4 घंटे का होगा। इससे सौराष्ट्र के उन लोगों का फ़ायदा होगा जो यहाँ सूरत में काम कर रहे हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है, बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रमोद तिवारी ने बिहार इंतखाबात के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद को कामयाबी हासिल होने के इम्कान जाहिर किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से बिहार की आवाम ने बिहार की तरक्की के लिए तेजस्वी यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने बिहार इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने की उम्मीद का भी इजहार किया। बीजेपी लीडर ज़फ़रुल इस्लाम ने बिहार इंतखाबात को लेकर जारी करदा एग्जिट पोल्स को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार इंतखाबात में बीजेपी के इत्तेहाद को भारी अक्सरियत हासिल होगी और नीतीश कुमार एक और मरतबा बिहार के वज़ीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स के नताइज से कांग्रेस पार्टी के कायदीन 2 दिनों के लिए खुश हो रहे हैं, लेकिन नताइज जारी होने के बाद उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जारी इनकाउंटर में 3 सिपाही के अलावा बीएसएफ का एक जवान और 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। महकमे दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि फ़ौज की गश्ती पार्टी को कल रात 1 बजे मच्छल सेक्टर में सरहद पर बनी खारदार तारों से दरअंदाजी करने का पता चला था, जिसके बाद फ़ौज और बीएसएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। मच्छल सेक्टर में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल संदीप सरकार ने अपनी जान गंवा दी। बीएसएफ के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई अभी भी जारी है। हिंदुस्तान और चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ ही पाबंदी का मुजाहरा करने पर इत्तेफाक किया है, जहां रवा साल जून से दोनों मालिक की फ़ौज आमने सामने है। वज़ारत ख़ारजा के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ैन मशरिक़ी लद्दाख खित्ते में मौक़ूफ़ को हल करने के लिए कोर कमांडर सतह के इजलास के अपने 8वें दौर में तामीली तौर पर मशगूल हैं। ये इजलास 6 नवंबर को
LAC के साथ साथ चशवेल में हुआ था। वजारत ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान हिंदुस्तान चीन के सरहदी इलाकों के मगरबी सेक्टर में एक्टिकल कंट्रोल लाइन के साथ मुनहरिफ होने के बारे में गहरा और तामीरी तबादले ख्याल हुआ। बयान के मुताबिक दोनों फरीकीन दोनों ममालिक के रहनुमाओं के जरिए तय पाने वाले अहम इत्तेफाक राय को पूरी शिद्दत से नाफिज करने, उनकी फ्रंट लाइन फ़ौज की रोकथाम को यकीनी बनाने और गलतफहमियों से बचने पर इत्तेफाक किया। महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर राम कदम ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र की सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की और मंदिर के पास महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए सिद्धि विनायक मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया है और बहुत जल्द अर्नब को जेल से छुटकारा हासिल होगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी इल्ज़ाम आयद किया और अर्नब की रिहाई के बाद दिवाली मनाने का भी ऐलान किया। देखिए, आज निवास से यहाँ पर सिद्धिविनायक भगवान के चौखट पर हम पैदल आए हैं और पैदल आकर के आज हमारी सिद्धिविनायक देवता से मन्नत है कि अर्नब गोस्वामी जी को तुरंत रिहा किया जाए। उनके परिवार पर, उनके सारे पत्रकारों पर जो महाराष्ट्र के जुल्मी सरकार ने जो झूठे केसेस किए हैं उनसे उनकी मुक्तता की जाए, उनको जेल से रिहा किया जाए। इस मन्नत को लेकर के आज हम सिद्धिविनायक के चौखट पर आए हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार का जबरन आपातकाल इस महाराष्ट्र की धृतराष्ट्र सरकार ने दुर्योधन के अहंकार के भांति लगाया है, वह आपातकाल वे इस प्रकार से जबरन थोप नहीं सकते। उसके विरोध में इस सरकार को सिद्धिविनायक देवता अच्छी बुद्धि प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। इस भाव को लेकर के आज हम सिद्धिविनायक के चौखट पर आए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का सौतेलाना सलूक। वज़ीर आला KCR की अपील के बावजूद सैलाब से मुतासर रियासत को माली इमदाद जारी नहीं की गई। रियासती वज़ीर KTR ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। 10 नवंबर से सालारजंग म्यूजियम दोबारा खोल दिया जाएगा। फेस मास्क और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी। नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 50 गाड़ियां की गई जब्त। हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।